یہودیوں کے لیے دروازہ پاکیزگی اور خدا کی حضوری کی سرحد ہے، بارڈر لائن ہے۔ یونانیوں کے لیے دروازہ زندگی اور موت کے بیچ کا مقام۔ رومیوں کے لیے دروازہ طاقت، حفاظت اور تبدیلی کا نشان۔ مگر مسیح میں یہ سب پورا ہوا۔ وہی واحد دروازہ ہے جو ہمیں گناہ سے نجات، موت سے زندگی اور زمین سے آسمان کی بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ لوکا کی انجیل 13ویں باب کی 24ویں آیت، متی کی انجیل 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کے مفہوم کو مسیح کی ذہنیت، خدا کے کلام، شریعت اور شاگردی کی ضروریات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ آئے ہم مرحلہ وار وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یسوع کا ذہن اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یسوع جب تنگ دروازہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک دعوت اور چیلنج دونوں دیتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی سب کے لیے کھلی ہے، لیکن راستہ آسان نہیں۔ انسان فطرتاً آسان راستہ یعنی چوڑا راستہ چاہتا ہے۔ خود غرضی، گناہ، طاقت، غرور۔ یسوع کہتے ہیں تنگ دروازے کا مطلب ہے قربانی، عاجزی، توبہ اور خدا کے حکموں پر چلنا۔ تنگ دروازہ، شاگردی کا راستہ۔ یسوع کے شاگرد بننا صرف نام یا رسموں کی بات نہیں۔ شاگردی کے لیے اپنی صلیب اٹھانا۔ لوکا کی انجیل 9ویں باب کی 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں مسیح کی پیروی میں دکھ سہنا اور اپنی خواہشات کو چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسرا، پرانی شریعت راست بازی کا معیار دکھاتی تھی مگر مکمل نجات نہ دے سکی۔ رومیوں کے نام خط 3 باب کی 20ویں آیت۔ مسیح نے شریعت کو پورا کیا۔ متی کی انجیل 5ویں باب کی 17 آیت۔ اور اب شریعت کا اصل لب لباب ہے، محبت خدا ہے اور محبت انسانوں سے، یعنی محبت خدا سے اور انسانوں سے۔ متی کی انجیل 22ویں باب کی 37ویں سے 40ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تنگ دروازہ شریعت کی روح میں جینا، صرف ظاہری الفاظ میں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ضروری ہے، کیا اہم ہے اس کے لیے۔ ایمان، نمبر 1، ایمان بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت۔ دوسرا، توبہ بہت ضروری ہے۔ توبہ، تبدیلی، لوکا کی انجیل 13ویں باب کی 3 آیت۔ تیسرا، عاجزی، حلیمی اور فروتنی بہت ضروری ہے۔ متی کی انجیل 18ویں باب کی 3 اور 4 آیت۔ چوتھا، محبت، یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت۔ پانچواں، برداشت اور وفاداری، عبرانیوں کے نام خط 13ویں باب کی 7ویں آیت۔ ہم یسوع کے حقیقی شاگرد ہیں تو شاگرد کی ضروریات ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع کے شاگرد کے لیے یہ لازم ہے، ایمان یعنی یسوع پر بھروسہ کہ وہی دروازہ اور راستہ ہے۔ صلیب اٹھانا، اپنی خواہش اور غرور کو مار کر مسیح کے لیے جینا۔ فرما برداری، کلام کے مطابق زندگی، محبت اور خدمت۔ غریب، مظلوم، دشمن تک سے محبت، برداشت، دنیا کی مخالفت، ظلم اور دکھ سہنا۔ اس کا الہیاتی اور روحانی طور پر ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ تنگ دروازہ مسیح میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہے مگر آسان نہیں، کیونکہ یہ راستہ قربانی مانگتا ہے۔ چوڑا دروازہ وہ ہے جس پر لوگ آزادانہ چلتے ہیں، گناہ، لذت، طاقت، مگر وہ ہلاکت کی طرف ہے۔ شاگرد وہ ہے جو ایمان، محبت اور فرما برداری کے ساتھ تنگ راستے پر چلتا ہے۔ لوکا کی انجیل جو آج ہم نے پڑھی ہے 13ویں باب کی 22ویں سے 30ویں آیت،
जो तंग दरवाजे से दाखिल होने की दावत देती है। पस मंज़र यही है कि यस्सु यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उनकी कुर्बानी और सलीब इंतज़ार कर रही है। उस वक़्त यहूदी समझते थे कि निजात सिर्फ़ उनके लिए है क्योंकि वो इब्राहीम की औलाद हैं। यस्सु ने वाज़े किया कि निजात सिर्फ़ कौमियत या मजहबी रस्मों से नहीं बल्कि हकीकी शागिर्दी से मिलती है। इसलिए वो फरमाते हैं, तंग दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करो, जान फिशानी करो, यानी आसान और चौड़ा रास्ता गुमराही की तरफ ले जाता है, लेकिन तंग रास्ता खुदा की बादशाही की तरफ। यीशु जवाब देते हैं जब ये सवाल किया जाता है कि क्या खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले थोड़े हैं, तो उसके जवाब में यीशु क्या फरमाते हैं कि निजात अदाद या इत्तेदाद की बात पर मुनहसर नहीं बल्कि रास्ते की है। वो कहते हैं तंग दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करो, मतलब निजात के लिए महज मजहबी शनाख्त या रस्में काफ़ी नहीं बल्कि सच्ची शागिर्दी, तौबा और आजिज़ी ज़रूरी है। जो बड़े समझे जाते हैं वो आखिर में रह सकते हैं, और जो छोटे समझे जाते हैं वो पहलों में शामिल हो सकते हैं। तजज़िया और अलाहियाती नुक्ता नज़र से हम देखते हैं आज की पहली तिलावत इशाया की पेशगोई और कलीसिया गैर कौमों का शामिल होना पेंतीकोस्त के दिन पूरा हुआ। रसूलों के अमाल दूसरे बाब में हम देखते हैं सब मोमिनीन को शाही कहानत के लिए बुलाया गया है, शामिल होने के लिए बुलाया गया। पहला पतरस दूसरे बाब की 9वीं आयत में देखते हैं। तादीब और मोहब्बत इब्रानियों 12वें बाब में हम देखते हैं। मसाइब मसीह के सलीबी राज का हिस्सा है। मसाइब मुसीबतें मसीह के सलीबी राज का हिस्सा हैं। सब्र ईमान को मजबूत और दिल को पाकीज़ा बनाता है। तंग दरवाज़ा मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 13वें बाब के मुताबिक तौबा, आजिज़ी और कुर्बानी की अलामत है। निजात कोई मारूसी हक़ नहीं बल्कि खुदा का तोहफ़ा है जिसके लिए जवाबदेह शागिर्दी ज़रूरी है। रूहानियत और गौर व फिक्र पर नज़र करते हुए हम देखते हैं कि खुदा सबको बुलाता है लेकिन रास्ता तंग है। निजात आसान नहीं, इसलिए इसके लिए कुर्बानी, दुआ, खिदमत और सच्चाई दरकार है। क्या हम सिर्फ नाम के मसीह हैं या हकीकी शागिर्द? अमली इतलाक़ के तौर पर हम देखते हैं कि रोज़ाना हमें ख़ुद से सवाल करना है, क्या मैं तंग दरवाजे से गुज़रने की कोशिश कर रहा हूँ? मुश्किलात में सब्र करें, क्या ये खुदा की मोहब्बत भरी तरबियत है? हर इंसान को कबूल करें, चाहे वो किसी कौम या तबके से हो, अपनी ज़िंदगी से अंजील की गवाही दें। खुलासा यही है कि हमें याद दिलाता है कि खुदा सबको निजात की दावत देता है, लेकिन निजात के लिए तंग दरवाजे से गुज़रना पड़ता है। ये रास्ता ईमान, आजिज़ी, कुर्बानी और सच्चाई का है। यीशु तादाद या कितने लोग की बात नहीं करते बल्कि रास्ते की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। तंग दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करो। वो बताते हैं कि निजात किसी कौम, नस्ल या मजहबी रस्मों पर मबनी नहीं बल्कि हकीकी शागिर्दी पर है। महज ये कहना कि हमने तेरे साथ खाया पिया है काफ़ी नहीं। निजात के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वफ़ादारी, तौबा, ईमान और आजिज़ी ज़रूरी है। मतलब निजात का दरवाज़ा खुला है लेकिन तंग है। सबको दावत है लेकिन रास्ता मुश्किल है। आसानी और ख़ुद गर्जी से नहीं बल्कि कुर्बानी और वफ़ादारी से निजात पाई जा सकती है। सिर्फ बपतिस्मा लेना, ईमान लाना, साक्रामेंट पूरे करना, इबादत या रस्म और रवाज निजात की ज़मानत नहीं। असल सवाल ये है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में मसीह की तालीम पर चलते हैं? जो बड़े समझे जाते थे यहूदी मजहबी लीडर रद्द हो सकते हैं। जो छोटे या बाहर समझे जाते थे यानी गैर कौमें गुनाहगार अंदर बुलाए जा सकते हैं। हम सब के लिए रूहानी पैगाम आज के लिए यह है कि हमें ख़ुद को परखने की ज़रूरत है। क्या हम सिर्फ नाम के मसीही हैं या हकीकी शागिर्द हैं?
तंग दरवाज़ा आज के दौर में मतलब कि सच्चाई पर डटे रहना। दुनिया मुखालफत करेगी, ईमान के साथ मुश्किलात बर्दाश्त करना, खिदमत, आजिज़ी, मोहब्बत और कुर्बानी की ज़िंदगी जीना। हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखते हैं, हम एक अक़लियत और कमज़ोर समझे जाते हैं, लेकिन खुदा की नज़र में हम भी दावत याफ्ता हैं। हमें डरने या हिम्मत हारने की बजाय तंग दरवाज़े से गुज़रने का हौसला रखना है, इंसाफ के लिए खड़े होना है, नफ़रत के बजाय मोहब्बत बांटना और मुसीबत में भी ईमान पर कायम रहना है। खुला दरवाज़ा बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल की रोशनी में इसके क्या मायने हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे उनके तनाज़ुर में, यूनानी तनाज़ुर में, रोमी तनाज़ुर में और यहूदियों के तनाज़ुर में दरवाज़े का मतलब हमने देखा। खुला दरवाज़ा अक्सर दावत और रसाई की अलामत है। मुकाशवा 3 बाब की 8वीं आयत, मैंने तेरे आगे एक दरवाज़ा खुला रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब ये कि खुदा सबको बुलाता है, दरवाज़ा सबके लिए खुला है। नंबर 2, तंग दरवाज़ा। मत्ती की इंजील 7वें बाब की 13वीं-14वीं आयत, चौड़ा दरवाज़ा और कशादा रास्ता हलाकत को जाता है, लेकिन तंग दरवाज़ा और तंग रास्ता ज़िंदगी को जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मतलब खुदा की बादशाही में दाखिला आसान नहीं, इसके लिए ईमान, तौबा, आजिज़ी और कुर्बानी दरकार है। ये दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है, लेकिन उससे गुज़रना मेहनत और वफ़ादारी मांगता है। नंबर 3, यसू खुद दरवाज़ा है। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 7वीं और 9वीं आयत में कि मैं ही दरवाज़ा हूँ, जो मेरे ज़रिए से दाखिल होगा वो निजात पाएगा। मतलब यसू निजात का वाहिद रास्ता है। निजात किसी फ़लसफ़े या रस्म से नहीं, बल्कि मसीह के साथ ताल्लुक़ से है। खुदा हमें यीशु के रास्ते पर चलने की फ़ज़ल अता करे, ताकत दे कि हम सही रास्ते पर चलते हुए यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हम ज़िंदगी में तब ही दाखिल हो सकते हैं, तंग दरवाज़े से तब ही दाखिल हो सकते हैं जब हम अपनी बदकारियों को, गुनाहों को पसे पुश्त डालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने गुनाहों की जो है गठरी उठाई हो, गुनाहों का बोझ उठाया हो, तो आप तंग दरवाज़े में से दाखिल होना चाहें तो आप कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। आप अपने गुनाहों के साथ, गुनाहों की पंड के साथ, खुदा गुनाहों के बोझ के साथ इसमें से दाखिल नहीं हो सकते। आप तब ही दाखिल हो सकते हैं जब अपने गुनाहों का बोझ उतारेंगे, गलत कार्यों को छोड़ेंगे, बदी और बुराई को तर्क करके आप इस तंग दरवाज़े में से दाखिल हो सकते हैं जो ज़िंदगी की तरफ जाता है, जो कि तंग नज़र आता है लेकिन कुशादा है, जिसमें कुशादगी पाई जाती है। खुदा की बादशाही का दाखिल हो सकते हैं, खुदा में दाखिल हो सकते हैं। जैसे हम इबादत में जाते हैं, खुदा के घर के दरवाज़े से दाखिल होते हैं, उसकी हज़ूरी में दाखिल होते हैं। खुदा से दुआ करे कि खुदा हमें इस दरवाज़े में से दाखिल होने का फ़ज़ल अता करे जो कि यीशु है।